بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے جس کا نام ہے ذرا فون کر لوں۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مزاحیہ شاعری کی طرح مزاحیہ مضامین بھی ادب کا حصہ ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ اور اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا مشکل الفاظ ہے اطمینان، کہتے ہیں تسلی، رشک، فخر، مغفرت، بخشش، حیثیت، شان، تشخیص، شناخت، نہار، ناشتے سے پہلے، مہلت، عرصہ، ممنون، احساس مند۔ ذرا فون کر لوں، اس کا خلاصہ یہ ہے مصنف بیمار پڑا تو اس کو اندازہ ہوا کہ وہ محلے بھر میں کتنا مشہور ہے۔ ہر کوئی اسے پوچھنے آ رہا تھا مگر ٹیلی فون ضرور کرتا۔ شاید مصنف کے گھر آنے کی وجہ یہی ٹیلی فون تھا۔ سب سے پہلے شیخ نبی بخش تشریف لائے اور مصنف کی چارپائی سے لگ کر بیٹھ گئے اور مصنف کی معمولی بیماری کو معمولی نہ سمجھنے کا مشورہ دیا۔ جاتے جاتے اپنی دکان پر فون کرنا ضروری سمجھا۔ مصنف کی طبیعت پوچھنے باقر علی صاحب آئے۔ انہوں نے نبض ٹٹولی اور کہا احتیاط کرو، کہیں مر گئے تو ادب کا ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا۔ بہکی بہکی باتیں کرنے کے بعد کہتے ایک فون کر لوں؟ مصنف نے کہا کر لیجئے۔ اس کے بعد پروفیسر کریم بخش مزاج پرسی کو آئے۔ انہوں نے تشخیص کی کہ مصنف کے جسم میں شکر کی کمی ہے اور گلا خراب ہے، جس کے لیے انہوں نے نسخہ تجویز کیا جو مینڈک کی چربی، گندک اور لال بیگ کے انڈوں سے بنایا گیا تھا، جسے نہار منہ الو کے مغز کے ساتھ کھانا تھا۔ ہمارے بھائی صاحب نے ہمارے کمرے میں نوٹس لگا دیا جو افراد مزاج پرسی کو آئیں وہ فون نہ کریں، جو فون کرنے آئیں وہ مزاج پرسی نہ کریں۔ مصنف کا نمبر ایک مرچنٹ کے نمبر سے ملتا جلتا تھا، اس لیے ادھر کے فون ادھر اور ادھر کے فون ادھر آ جاتے۔ ایک بار ایک مرچنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر آپ کے فون ادھر آتے ہیں، لوگ مشاعروں میں غزل کی فرمائش کرتے ہیں۔ مصنف کو ایک دن فون آیا اور بولا 4 چھول داریاں، 12 ڈنر سیٹ، 4 چاندنیاں۔ مصنف نے بولنے کی کوشش کی مگر ادھر سے حکم ہوا پہلے ان کا آرڈر نوٹ کیا جائے۔ آخر کار مصنف نے بتایا کہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے تو وہ حرمی سے بولے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا ہے مصنف کو کب پتہ چلا کہ وہ محلے میں بہت مقبول ہے؟ مصنف جب بیمار ہوا تو اسے پتہ چلا کہ وہ محلے میں بہت مقبول ہے۔ سوال نمبر 2، شیخ نبی بخش کہاں فون کرنا چاہتے تھے؟ کیا مصنف نے انہیں روکا؟ شیخ نبی بخش اپنی دکان پر فون کرنا چاہتے تھے۔ مصنف نے انہیں نہیں روکا اور کہا کہ شوق سے کر لیجئے۔ سوال نمبر 3، میر باقر کے مطابق ادب کو کس طرح ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے؟ میر باقر کے مطابق اگر ادیب مر گیا تو ادب کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 4، پروفیسر کریم بخش کا پیشہ کیا تھا؟ پروفیسر بننے سے پہلے کریم بخش کا پیشہ خانسامہ تھا۔ خانسامہ مطلب کہ باورچی۔ سوال نمبر 5 ہے، پروفیسر کریم بخش کے مطابق مصنف کو کیا بیماری تھی؟ انہوں نے کیا علاج تجویز کیا؟ پروفیسر کریم بخش کے مطابق مصنف کو شکر کی کمی اور گلا خراب کی بیماری تھی۔ انہوں نے مینڈک کی چربی، گندک اور لال بیگ کے انڈوں سے بننے والی دوائی تجویز کی جسے الو کے مغز کے ساتھ نہار منہ کھانا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ پہلا الفاظ ہے سیاح۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو دیکھنے کے لیے تمام ممالک سے سیاح آتے ہیں۔ تاریخی، مجھے تاریخی عمارات پسند ہیں۔ عبرت، دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ گرد و غبار، فضا میں گرد و غبار کی وجہ سے سانس کی بیماریاں عام ہیں۔ کامیابی، محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ شیخ نبی بخش ہیں تاجر۔ شیخ نبی بخش کی بیوی کا بھانجا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا کینیڈا۔ میر باقر علی ہیں ریٹائرڈ تھانے دار۔ میر باقر کے بقول مصنف کی وفات سے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا ادب کو۔
प्रोफेसर करीम के मुताबिक मुसन्निफ के जिस्म में शक्कर की कमी। खाली जगह पुर करें। हमें अक्सर फरमाइशें इस किस्म की आती हैं कि 15 सैर डैश भेज दीजिए लड्डू। एक मर्चेंट का नंबर कुछ ऐसा है कि इसके और हमारे फ़ोन नंबर में फ़कत डैश अदद का फ़र्क है, 1। हलवा मर्चेंट साहब ने बताया कि अक्सर डैश के लिए डैश की फरमाइश इनसे की जाती है, मुशायरों के लिए गज़लों की। बाज़ लोग सब्र वाले होते हैं, हमें सॉरी डैश कहने की मोहलत मिल जाती है, रोंग नंबर। दस्ती से बोले 4 डैश भी डाल दीजिए चांदनियाँ। सवाल नंबर 5 है, आपने सबक ज़रा फ़ोन कर लूँ पढ़ा। साथियों के साथ मुसन्निफ के असल मुद्दा को समझने के लिए गुफ्तगू करें, अपनी राय दें और फिर हम जमातों से भी पूछें कि इनके ख्याल में मुसन्निफ का असल मुद्दा क्या है। आइए इसे देखते हैं। जी, तो हमने इसको एक मुकालमे की सूरत में बयान किया है। जो है हमना वो कह रही हैं, मैंने सबक ज़रा फ़ोन कर लूँ पढ़ा। मेरे ख्याल में मुसन्निफ का असल मुद्दा ये है कि मुसन्निफ के घर टेलीफोन लगा था। मुसन्निफ की मजाज पुरसी के बहाने लोग फ़ोन करने आ रहे थे। लोग दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। आगे मिनाहिल है, वो कह रही हैं, मेरे ख्याल में मुसन्निफ का मकसद कहानी में मज़ाह पैदा करना है। अगर हमारा फ़ोन नंबर किसी से मिलता हो तो हमें बहुत रॉन्ग नंबर से फ़ोन आते हैं। जी, तो लास्ट पर अरूज हैं, वो कह रही हैं, मेरे ख्याल में मुसन्निफ ये बताना चाहता है कि बीमार पड़ जाओ तो लोग नुस्खे बता कर नाक में दम कर देते हैं। सवाल नंबर 6 है, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। इन्होंने हमें कुछ अल्फाज दिए हैं जो हमने बताने हैं कि इसमें से ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुज़क्कर हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुअन्नस हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें है शहर, शहर होता है तो ये क्या हुआ, मुज़क्कर। मरकज़ होता है, पतरा होता है, हाथ होता है, ये सारे के सारे हो गए मुज़क्कर। अब मुअन्नस जो कि होती है, हवा होती है, मुसीबत होती है, राय होती है, अर्जी होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 है, जिसमें उन्होंने हमें एक इबारत दी है और इसमें से कुछ अल्फाज उन्होंने ऊपर लाइन लगाई है। इसमें से हमने बताना है कि इसमें से मुज़क्कर कौन से हैं और मुअन्नस कौन से हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मुज़क्कर उसको कहते हैं जो हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जबकि मुअन्नस उसको कहते हैं जो हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट देख लें, दुनिया, दुनिया होती है तो ये क्या हुआ, मुअन्नस। ये है मुज़क्कर, मुज़क्कर में आ रहा वतन होता है, फ़र्ज होता है, मसला फ़ाज होता है, दिन होता है, दुश्मन होता है, हौसला होता है। ये सारे के सारे मुज़क्कर हैं। और मुअन्नस में क्या है, दुनिया, कौम, हिफाजत, अवाम, सलामती, बहादुरी, रात, तादाद। आगे सवाल नंबर 8 है, वो ये है, दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ें और बताएं कि बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी और अंडा मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब ये एक इबारत दी है, अभी हम पीछे पढ़कर आए कि मुज़क्कर कौन से होते हैं और मुअन्नस कौन से होते हैं। आइए पहले हम इबारत पढ़ लेते हैं। वो है, मेरी बिल्ली बहुत खूबसूरत और मेरा कुत्ता बहुत वफादार है, मगर मेरी मुर्गी बहुत बुरी है, हर वक्त शोर करती रहती है, तहम उसका अंडा खाने में बहुत मज़ेदार होता है। अब इसमें आप देखें, बिल्ली और मुर्गी, बिल्ली होती है, मुर्गी भी होती है, ये दोनों क्या हुए, मुअन्नस। जबकि यहाँ पर है कुत्ता, कुत्ता होता है और अंडा होता है, ये हमारे पास क्या हुए, मुज़क्कर। सवाल नंबर 9 है, आपने ज़रा फ़ोन कर लूँ में बयान की गई कहानी पढ़ी सुनी, और इसके अंदर हम लोगों ने जो उन्होंने हमें 2 किरदार बताए थे, शेख नबी बख्श और मीर बाकर अली संदेलवी के बारे में अपनी ज़ुबानी राय बतानी है। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें शेख नबी बख्श के बारे में बताते हैं, जो उसका इसमें किरदार है। वो क्या है जी, शेख नबी बख्श से मुसन्निफ की सिर्फ सलाम दुआ थी। मुसन्निफ को खांसी और बुखार हुआ तो इसे मजाज पुरसी करने आए, जैसे कि वो दरीना दोस्त हों, और जाते जाते अपना मतलब पूरा कर गए कि टेलीफोन करना है। आगे बाकर अली संदेलवी हैं, वो क्या है जी, बाकर अली संदेलवी ने कहा, आप मर गए तो अदब का बहुत नुकसान होगा। बाकर साहब को बहकी बातें करने की आदत थी। मरीज से कभी मरने की बात नहीं करनी चाहिए, उससे कहना चाहिए कि आप इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 है, जो कि है, आपके वाले सरकारी अफसर हैं, उनका तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया है, अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के नाम स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी करने की दरख्वास्त लिखें। ये एक दरख्वास्त है जो कि स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट है। इसे देखते हैं। वो ये है, बखिदमत हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर जनाब आली,
मोहतबाना गुजारिश है कि मेरे अबू सरकारी अफसर हैं, उनका तबादला गुजरात में हो गया है, इस वजह से मैं इस स्कूल में मजीद तालीम जारी नहीं रख सकती। मेहरबानी फरमाकर मेरे स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट का अजरा किया जाए ताकि मैं नए स्कूल में दाखिला ले सकूं। नवाजिश होगी। अलर्ज आपकी ताबेदार शागिर्दा। जो भी आपका नाम है आप वो लिख सकते हैं। इस सबक का आखिरी सवाल है, कोई मज़ाहिया कहानी या वाक़या सोचकर अपने अल्फाज में लिखें। आप लोगों को जो भी आता हो, जो भी समझ आओ वो भी लिख सकते हैं, और जो मैंने लिखा आप उसको भी एक नज़र देख लें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था कि इसे बाग में मटका नज़र आया। मटके में पानी बहुत कम था। उसने एक कहानी सुन रखी थी कि अगर मटके में पानी कम हो तो कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ जाता है। कौवे ने मटके में बहुत से कंकड़ डाले। कौवे ने मटके में झांका तो मटका कंकड़ों से भरा हुआ था। कंकड़ सारा पानी चूस गए थे। कौवा गम और प्यास से नडाल होकर गिर गया और फिर ना उठा। बेचारा कौवा थोड़ी समझ बूझ से काम लेता तो बाग से नलकी उठा लाता। बाग में कई नलकियां पड़ी थीं जो बच्चों ने बोतलें पीने के बाद फेंक दी थीं। इस नलकी से पानी चूसता और अपनी प्यास बुझाता। इसलिए कहते हैं सुनी सुनाई बात पर कान ना धरो। जी, आज का लेक्चर हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।